چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار بیرسٹر تیمور ملک میں مقابلہ ہے۔ 4,44,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ حلقے کے 275 پولنگ اسٹیشنز میں سے 69 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پولیس کے 8,000 افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ملتان میں ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا۔ این 148 میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار بیرسٹر تیمور ملک میں مقابلہ ہوا۔ نمائندہ ایک نیوز آصف بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی آصف بتائیے گا، باقاعدہ پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے؟ جی بالکل، این اے 148 ملتان کا یہ حلقہ ہے اور بالکل پولنگ کا جو ہے وہ عمل شروع ہو چکا ہے صبح 8 بجتے ہی، لیکن جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں جو 264 کا یہ اس وقت یہ پولنگ سٹیشن ہے، وہاں پر ابھی بھی کوئی بھی ابھی تک ایک بھی ووٹر آیا نہیں ہے۔ حالانکہ صبح کا ٹائم ہے، ابھی اتنی گرمی نہیں ہے ملتان میں، لیکن ابھی بھی کوئی ووٹر نہیں آیا ہے۔ تو جناب یہ وہ حلقہ ہے جو کہ یوسف رضا گیلانی جو کہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں، ان کے سیٹ خالی ہونے کے اوپر یہاں پر جو ہے اب الیکشن کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور جو کل ووٹرز ہیں وہ 4,44,000 سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں جو ہے وہ مرد اور خواتین کا ووٹ آلموسٹ اب برابر ہے۔ جبکہ 275 پولنگ سٹیشن ہے، جن میں 69 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو کہ حساس قرار دیے گئے ہیں اور وہاں پر پولیس کی نفری اور وہاں پر رینجر بھی تعینات کی جائے گی۔ جبکہ ٹوٹل جو نفری ہے ملتان پولیس کی وہ 3800 کے قریب ہے، جن میں افسران اور جوان موجود ہیں اور جو کہ یہاں پر سیکیورٹی پر مامور ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور ہر پولنگ سٹیشن پر واک تھرو گیٹ بھی نصب کیا گیا ہے، جس سے ہو کر ووٹر یہاں پر آ رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی یہاں پر جس پولنگ سٹیشن پہ میں موجود ہوں، یہاں پر جو عملہ ہے وہ ٹائم پر پہنچ گیا ہے اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہے۔ ووٹر تو ابھی تک نہیں آئے، لیکن یہاں پر جو ابھی گہما گہمی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جبکہ اس وقت اگر بات کی جائے بڑے ٹاکرے کی، تو وہ تو جناب قاسم گیلانی جو کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں ان کے درمیان اور تیمور ملک میں جو کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، ان کا جو ہے یہاں پر ٹاکرا ہوگا، جو کہ جنرل الیکشن میں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی سے صرف 104 محض ووٹوں سے شکست کھائی تھی۔ تو آج بڑا ٹاکرا جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹوٹل جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ اس سیٹ پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی مجموعی طور پر تعداد جو ہے وہ 8 ہے، لیکن 2 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کے اوپر تمام کی نظریں ہوں گی اور دیکھنا یہی ہوگا کہ آج شام تک جو ہے وہ کتنا ٹرن آؤٹ رہتا ہے، کیونکہ آج گرمی بھی کافی زیادہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان میں جو درجہ حرارت ہے وہ آلموسٹ آج 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ووٹر کیا آتا ہے، ٹرن آؤٹ کتنا رہتا ہے۔ یہ سارے جو ہے وہ چیزیں شام 5 بجے تک پولنگ کا جو عمل ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا، تو پتہ چلے گا کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا، کتنے لوگ ووٹ یہاں پر کاسٹ کریں گے۔ فی الحال اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے، پولنگ کا عملہ جو ہے اس وقت موجود ہے اور بس ووٹرز کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بہت شکریہ آصف بلوچ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملتان کے حلقہ این 148 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پولنگ کا وقت تو شروع ہو چکا، لیکن ووٹرز اور سپورٹرز تاحال پولنگ اسٹیشن نہ پہنچ سکے۔ اس وقت پولنگ اسٹیشنز کے اندر کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مازن یوسف سے۔ 148 آج اہم ترین ضمنی الیکشن کا مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور آج یہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت 8 سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، پولنگ کا وقت تو شروع ہو گیا ہے، لیکن جو یہاں پہ جو صورتحال ہے ابھی تک کوئی ووٹرز نہیں پہنچے یہاں پر، اور جو پولنگ عملہ ہے وہ تو یہاں پر موجود ہے، اپنے طور پہ صفائیاں ستھرائیاں بھی کر رہا ہے، لیکن جو یہاں پر ووٹر ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ باہر جو خاص طور پہ یہاں پہ پولنگ کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ابھی تک انتظامات نہیں ہیں، پرچیاں یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ دیگر جماعت جو پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پہ سنی اتحاد کونسل کے اور تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں تیمور مہے، ان کے بھی ابھی تک حمایت یافتہ لوگ یہاں پر نہیں پہنچے۔ تو خاصا گرمی کا آج اگر موسم کی ملتان کی بات کریں تو 45-46 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اگر ہم اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو تقریباً 4,44,000 کے قریب رجسٹرڈ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں سے 2,33,000 مرد حضرات اور 2,10,000 خواتین ووٹرز جو ہیں وہ حق رائے دہی استعمال آج اپنا مجموعی طور پہ حلقے میں
72 मर्दों के और 72 ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 131 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है और मजमूई तौर पे 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं मुल्तान कैंट के इलाके के पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। नुसरतुल इस्लाम स्कूल ये है और यहाँ पर अभी तक वोटर्स दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में आवाम से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को वोट देने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान के अवाम से बात करना चाह रहा हूँ। कल 19 मई को बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है। मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आए, बाहर निकले, बड़ी तादाद में तीर पर मोड़ लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाएं ताकि अली कासिम गिलानी साहब नेशनल असम्बली में आके मेरे साथ मिल के काम कर सके, मुल्तान का आवाज़ बन सके और हम सबसे भरकर आपके मसाइल का हल निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि नेशनल असम्बली में हम एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जहाँ हुकूमत का अच्छा पॉलिसी होगा वहाँ हम उसका तारीफ करेंगे और जहाँ बेहतरी का गुंजाइश होगा वहाँ हम अपना मौक़िफ़ उठाएंगे। यही तरीका है कि सियासत किया जाए और अवाम के मसाइल को तरजीह दिया जाए, जबकि हमारे मुखालफीन सिर्फ नफ़रत और तकसीम और मुनाफिकत का सियासत करते हैं। और उम्मीद है कि मुल्तान के अवाम एक बार फिर 19 मई को इन नफ़रत और तकसीम के सियासतदानों को शिकस्त दिलवाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी सियासत को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। अली कासिम गिलानी। ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू कहती हैं ज़्यादातर तलबा वापसी के बजाय सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी हेल्पलाइंस बना दी गई हैं ताकि लोग कांटेक्ट करके अपनी खैरियत की इत्तला हमें दे सकें। आज किर्गिज रिपब्लिक के जो नाज़िमुल उमूर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और उनसे शदीद एक डिमाश भी किया गया। इसी तरीके से हमारे एम्बेसडर किर्गिज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर आए हैं, उनको ये सारे मामलात उनके सामने लाए हैं। लेकिन इस वक्त की रियलिटी ये है, हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है जो आपने 2-3 केसेस बताए, कोई मर्डर की, कोई डेथ्स की रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है। इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, मॉब्स को कंट्रोल किया जा चुका है। और दीगर खबरें आप तक पहुँचाएँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास महफूज है। उन्होंने कहा कि बानी PTI को लाना है। 3 अफराद 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज देते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने पीठ में छुरा घोंपा, हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हकायक है। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुँच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुँच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान कि हम आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है KPK में वो ये PTI है तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है तो उनको बनाने दे। हम मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम न लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं, नैब का जो जज है इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें और जस्टिस
एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भी बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया। जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने पेश वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? फिर पूछा तो जाए। जज जो थे जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते हैं जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, इंसाफ के परखशे उड़ाए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों से मुल्क की जड़ें हिला दी गईं। सियासी जमातें मिलकर बेहतरी के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सरीहन जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था जब हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिलखराश मंजर नहीं भूल सकता। और फिर उसके बाद हमें कराची ले जाया गया, लांडी जेल में बंद किया गया और वहाँ फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग नून के मरकजी वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया गया। शहबाज शरीफ 28 मई तक पार्टी के कायम मकाम सदर रहेंगे, जिसके बाद नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाएगा। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के मरकजी कायदीन समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शिरकत की। इजलास में कायम मकाम पार्टी सदर के लिए 2 नामों पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर कायम मकाम सदर तजवीज़ किया, जिसके बाद वर्किंग कमेटी के अरकान ने उनके नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 मई तक पार्टी के कायम मकाम सदर रहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इजलास में सिर्फ कायम मकाम सदर के लिए गौर खोज हुआ। 28 मई को नवाज शरीफ पार्टी सदर मुंतखब हो जाएंगे। पार्टी की सदारत के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन अली जाहिद के साथ राना वहीद, 1 न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक को वाजिबात की अदायगी के लिए 15 दिन की मोहलत का बयान। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। लीगी रहनुमा अमीर मकाम बोले अली अमीन गंडापुर बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं और मैं ये आपको दिखाऊंगा। वज़ीर आला KP की विफाक पर फिर चढ़ाई का बयान। लीगी रहनुमाओं की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। सीनियर लीगी रहनुमा अमीर मकाम बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे में बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। उनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अभी भी नाकाम बनाएंगे। PTI ने अपने वर्कर्स को तरगीब दे रखी है कि झूठ बोलो और इल्जाम लगाओ। कुछ हासिल नहीं हो रहे हैं मगर वो अपने लीडर के एजेंडे पर लगा हुआ है, उसकी पाकिस्तान के साथ और उसके साथ कोई काम ही नहीं कि मुल्क से आगे चले। वो कहता है कि जिस तरह बदअमनी हो और इंतशार हो इसमें उनका फायदा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन को आवाम ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया है। फैसल करीम कुंडी भी विफाक से बकायाजात के लिए गंडापुर की मदद करें। पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF मिशन के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे।
IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात। पाकिस्तान और IMF के माबैन पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के हुजम पर भी बात फाइनल होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात में FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में SIFC के मंसूबे ग्रीन टूरिज़म से सियाहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ग्रीन टूरिज़म कंपनी का सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुआहिदा तय पाया है। मुआहिदे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 44 सरकारी खस्ताहाल गेस्ट हाउसेस को जदीद तर्ज पर तैयार किया जाएगा। मुआहिदे में शामिल गेस्ट हाउसेस कई सालों से सरकारी ख़जाने पर बोझ थे, जिनसे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इन गेस्ट हाउसेस की तज़ीन व आराइश से इलाके में सियाहत के शोबे में न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। जबकि ग्रीन टूरिज़म कंपनी इब्तदाई तौर पर 3 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। सालाना मुनाफे का 20% गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सालाना आमदनी का 35% गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को सूबे की तरक्की के लिए मिलेगा। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मामला जूं का तूं। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी अभी तक तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजर गए। वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी ताहाल हक़ाइक़ मंजर आम पर ना ला सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवानी थी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद ताहाल कमेटी किसी नतीजे पर न पहुँच सकी। 13 लाख टन दरामद गंदम में कीड़े निकलने का मामला भी मंतकी अंजाम तक न पहुंच सका। किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। सरकारी नरखों से कई गुना कम रेट पर गंदम फरोख्त होने लगी। पंजाब में फी बोरी की कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की तरफ से MD और GM पास्को को हटाने के बाद नया MD तैनात नहीं किया, ना ही 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल शुरू हो सका। गंदम बहरान में बड़े पैमाने पर बद इंतज़ामी और नाअहली भी सामने आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गोदामों में पड़ी लाखों टन गंदम ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए महकमा खुराक का कहना है कि सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम गुज़श्ता साल की है। गंदम स्कैंडल, बदइंजामी और नाअहली की एक और कहानी सामने आ गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के गोदामों में पड़ी लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक के ज़राए ने बताया कि सरकारी गोदामों में गुज़श्ता साल की हज़ारों टन गंदम पड़ी खराब हो रही है। पुरानी और ख़राब गंदम के बायस फ्लोर मिल्स मालिकान ने खरीदने से इनकार कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है सरकारी पुरानी गंदम का रेट 4700 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 3000 रुपए में दस्तयाब है। रमजानुल मुबारक में दिए गए आटे के 85 करोड़ रुपए भी हुकूमत ने अभी अदा करने हैं। सेनेटर फैसल वावडा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि बादियुन नज़र में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। दोनों को अपने किए की वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स को भी मुतनब्बे कर दिया कि तौहीन आमेज़ मवाद चलाना या दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। TV चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक गैर मुतालिका अफराद बगैर चेकिंग के पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों ने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पीने के साफ़ पानी और निकासी आब की स्कीम्स पर काम जारी है। नए माली साल में पूरे सूबे में तरक्याती काम तेज़ी से शुरू किए जाएंगे।
چاہتے ہیں کہ جاری ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کر لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر شملہ پہاڑی لاہور کا اچانک دورہ۔ نادرا سینٹر میں کم رش اور شہریوں کی باری جلد آنے پر عملے کو شاباش دی۔ وزیر داخلہ نے شہریوں سے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ محسن نقوی نے پوچھا کہ انتظار زیادہ تو نہیں کرنا پڑتا، جس پر سائلین نے جواب دیا کہ باری جلدی آ رہی ہے، انتظار نہیں کرنا پڑ رہا۔ محسن نقوی نے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل بھی پوچھے۔ مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں شدید گرمی کی لہر، ہیٹ سٹروک کے خطرات کے پیش نظر ماہرین صحت کی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کے کوارڈینیٹر عدنان لغاری نے کہا کہ ہیٹ سٹروک کے پیش نظر اسپتالوں میں وارڈ قائم کر رہے ہیں، شہری خود بھی احتیاط کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی شہید میجر بابر خان کے گھر میاں والی آمد، شہید کی وطن عزیز کے لیے خدمات کو سراہا، بلندی درجات کے لیے دعا مانگی۔ قوم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف علی زرداری میاں والی میں شہید میجر بابر خان کے گھر پہنچے۔ صدر آصف علی زرداری نے یوب میں شہید ہونے والے میجر بابر خان کے لیے فاتح خوانی کی، شہید کے لیے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر زرداری نے شہید کے بچوں کو پیار کیا اور والد سے گلے ملے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے، پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کے باعث ملک میں امن قائم ہے۔